Hello student, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm fine. And what about you? Okay, beta. In our last class we were talking about the life situation in desert. आप सभी लोग को याद है या आप भूल गए? मैम याद है। याद है। चलिए कितने बच्चों को याद है? याद है। वाओ, ग्रेट। चलिए अंशित आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज ही चेक कर लीजिए, आप लोगों ने रिवाइज किया है या नहीं किया है। चलिए आप बताएंगे व्हाट इज ओएसिस? दूसरा। यस अंशित। Yes, Sakshi, now you tell. Sakshi, yes, Sakshi, continue. A small area in the desert that has a supply of water and is able to support vegetarian is known as ocean. Oasis. Yes, Anushka, now you tell. Ma'am, a small area in a desert that has a supply of water and is able to support vegetation is known as an oasis. Okay, very good. चलिए बेटा, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। ओके, चलिए मैं आपको Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये स्क्रीन शो हो रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लाइफ सिचुएशन इन डेजर्ट। तो इसमें हम सभी ने बंजारास के बारे में भी पढ़ा था। चलिए अब बंजारास के बारे में कौन बताएगा? यस, शिखर, नाउ यू टेल बेटा, हु आर बंजारा? यस शिखर बेटा, ऑन क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए। यस बेटा, आई एम आस्किंग टू यू, हु आर बंजारास? Ma'am, some people live in desert, do not sit at one place but move from one place to another with their families and points in the search of water. Yes, Rajpal, now you tell. Some people live in the desert is not select at one place but move from one place search water. These Nadisik known as Banjaras. Very good. Yes, Shivangi Tripathi, now you tell. शिवांगी बेटा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। Nobody say that me I tell. Okay, वो जिससे क्वेश्चन पूछूंगी केवल वही आंसर देगा। यस, आस्था बेटा आप बताएंगी। Some people living in desert do not settle at one place but move from one place to another with their families and profession in search of water. These nomadic people are known as Banjaras. बेटा वो नोमैडिक पीपल है, नोमैडिक पीपल यानी कि घुमंतु लोग। चलिए बरखा आप बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाई ए शिप इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? व्हाई कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट?
बरखा ऑन माइक। Camels for playing fields and people drink camel milk too. They for the people living in the also called the people of the desert. मैम मेरे को भी आता है. Yes, Astha, now you tell. Yes, Astha. Beta, why camel is called the ship of desert? The ship is called the ship of desert. The camel is called the ship of desert because it is very useful for desert peoples. Okay, very good. And how a camel useful for the people of desert? Yes, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अनुष्का, बेटा आप बताएंगी. How a camel helpful for the desert people? Camels are helpful for the deserts people because camels can survive for days without water and food, about 3 months. Camels can also walk in the desert sand with ease due to their wide padded feet. And camel can be used for carrying load, pulling cart, fluffing fields, and for traveling. Okay, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, Adarsh, now you tell. What are the trees that found in desert? Yes, Adarsh, name of the trees that found in deserted area. Sanjana, beta, now you tell. Yes, Sanjana, on mic. Yes, Rajpal, now you tell beta. What are the trees that found in deserted area? The trees found on desert dates, plum, babul. Very good. Well done, Rajpal. चलिए बेटा, तो अब अभी हम लोग फिलहाल अपनी लास्ट क्लास को रिवाइज कर चुके हैं. एंड नाउ वी मूव टू द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द डेजर्ट. अब हम लोगों को डेजर्ट के बारे में ये पढ़ना है कि डेजर्टेड एरिया में लोगों को वाटर सप्लाई किस तरीके से की जाती है. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम सभी ने पढ़ा था कि जो थार डेजर्ट है दैट आर द बिग डेजर्टेड एरिया, और इस एरिया के लोगों के पास पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है. तो उन लोगों तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं. एंड आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप सभी से फिर से क्वेश्चन पूछना है. ओके बेटा? Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. Yes, let me start our topic. Since people in this region were facing great difficulty due to the scarcity of water. तो यहाँ के जो इस रीजन के यानी कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ग्रेट डिफिकल्टी फेस करते हैं, बहुत परेशानी होती है उन्हें. किसकी? ड्यू टू द scarcity ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी से ही है सबसे ज्यादा परेशानी. द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान built the इंदिरा गांधी कैनल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. तो जो राजस्थान की गवर्नमेंट है यानी कि जो राजस्थान के जो एरिया के जो हेड है, वहाँ की जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को यानी कि राजस्थान के लोगों को पानी की कमी से मतलब ओवरकम करने के लिए, उन्हें पानी की कमी से बाहर निकालने के लिए क्या किया है? यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल बनवाई है. ये आपको इतनी बड़ी सी नहर दिख रही है ना,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इंदिरा गांधी कैनल है और इस कैनल के थ्रू डेजर्टेड एरिया Yes, ma'am. राजस्थान के एरिया में पानी लाया गया है। यानी कि ये नहर इसलिए बनवाई गई है ताकि राजस्थान के लोगों को भी पानी मिल सके। अब इस वाली नहर में पानी कहाँ से आता है ये देखते हैं। दिस कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज। तो बेटा ये जो कैनल है इसमें पानी कहाँ से आता है? सतलुज रिवर से। तो जो सतलुज नदी है जिस पर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है उसी नदी से पानी लाया गया है यहाँ तक। शिवांगी बेटा आप ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग और आपको रिमूव कर दूंगी मैं फिर। आपका नाम भी शो हो रहा है। साक्षी भी कर रही है अब। यस बेटा तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये जो कैनल बनाई गई है इंदिरा गांधी कैनल इसी से डेजर्टेड एरिया में राजस्थान के लोगों को पानी मिल पा रहा है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ के Yes, लोगों ma'am. को पानी मिल पा रहा है, इन लोगों को पानी की कमी नहीं Yes, होती। ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन। और ये जो नहर आ रही है इस नहर से पानी किस लिए यूज किया जाता है? दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंड एज वेल एज इरिगेशन, इरिगेशन के लिए दैट मीन्स की खेती करने में सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है इस पानी का। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा देखिए इसी नहर की वजह से यहाँ पर ये सारी फसलें भी कल्टीवेट की जा सकती हैं। दिस कैनल हैज ट्रांसफॉर्म्ड द डेजर्ट in the northwestern region of the Rajasthan into field of ज्वार, millet, wheat and other crops। तो बेटा इस कैनल के पानी से ही दैट मीन्स कि अगर ये कैनल नहीं होती तो ये सारी फसलें भी नहीं होती। तो ये जो कैनल है इसने डेजर्ट के एरिया को, डेजर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को, वहां के जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहां पर खेती पॉसिबल कराई है। वहां पर इसी नहर की वजह से खेती करना पॉसिबल हो पाया है और इसी नहर की वजह से यहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूं इन सारी चीजों की खेती की जाती है। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आपको ये टॉपिक समझ आ गया किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच कैनल सप्लाइज द वाटर फॉर राजस्थान पीपल? यस अभिनय पांडे आप बताएंगे। नहीं बात क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। यस बेटा आई एम आस्किंग टू यू विच कैनल सप्लाइज द वाटर फॉर द राजस्थान पीपल? मैम इंदिरा गांधी मैम कैंसल। बेटा कैनल लिखा है ये इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी कैनल है जो राजस्थान के एरिया में राजस्थान के लोगों को वाटर सप्लाई करती है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर Yes, ma'am. शिवान्या आपको बताना है बेटा। द इंदिरा गांधी कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? यस शिवान्या। यस बेटा शिवान्या बेटा आपको मैडम इंदिरा गांधी कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? हम बताएं। यस आदर्श आप बताएंगे। मैम सतलुज। सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर से ये पानी लेती है इंदिरा गांधी कैनल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस राजपाल आप बताएंगे। Yes, ma'am. What are the crops that grown in the part of Rajasthan? This canal be transformed the desert is a northwestern region of the Rajasthan in field jar, mittis, wheat and other crops. नो बेटा ये आपको इतना लेंथी आंसर थोड़ी लिखना है। आपसे मैंने केवल ये पूछा है व्हाट आर द क्रॉप्स दैट ग्राउंड इन द पार्ट ऑफ राजस्थान।
Yes, Astha, now you tell beta. The crops jowar, millet, and wheat grow in Rajasthan. Yes. So ज्वार, millet, wheat are the crops that grown in the part of Rajasthan. चलिए बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? वाइल्ड एंड पार्क, यानी कि यहाँ के जो जंगली जानवर हैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कौन से पार्क बनाए गए हैं। हमने अपने लास्ट चैप्टर में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बस यहाँ मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो जंगली जानवर हैं, वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो पार्क बनाए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो बेटा आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यस, किसे याद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। मैम क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? यशवर्धन, आप कहिए। मैम मैं टेल? यशवर्धन, नाउ यू टेल। The some wildlife sanctuary is Bharatpur and Sariska बेटा wildlife. यस यशवर्धन, बेटा मैंने अभी ये पढ़ाया ही नहीं है। जो हमने इससे पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था माउंटेन रेंज वाला, हमने वहां पर पढ़ा था माउंटेन रेंज में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो कौन से एरिया में है ये बनाई गई। जो पार्क बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कौन से एरिया में बनाया गया है? मिस अनुष्का, नाउ यू टेल। मैम सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में। तो आप सभी को ना ऐसा नहीं करना है कि आप आगे वाले चैप्टर पढ़ते जाएं और पीछे वाला सारा ही भूलते जाएं, ऐसा नहीं करना है। आप आगे पढ़ेंगे और पीछे वाले को भी याद रखेंगे। ओके? यस मैम। तो अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। Wild animals such as panther and deer are also found in desert. तो बेटा यहाँ पर पैंथर एंड डियर ये दोनों ही पाए जाते हैं, यानी कि चीता और हिरन ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। रणथंभौर, भरतपुर एंड सरिस्का आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन। तो बेटा राजस्थान में देखिए रणथंभौर, भरतपुर एंड सरिस्का ये ऐसे गार्डन हैं, ऐसे पार्क हैं जो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ओके? यस मैम। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, रणथंभौर, भरतपुर एंड सरिस्का। यस मैम। चलिए, अब आप में से कोई घूमने गए हैं राजस्थान? नो मैम। नो मैम। राजस्थान में एक ऐसा पैलेस है जो हमारे इंडिया में कहीं और नहीं है। आपको पता है कौन सी ऐसी जगह है राजस्थान में? नो मैम। नो मैम। मैम आप नो मैम। तो बेटा एक तो यहाँ पर है जैसलमेर। मैम आप यस मैम मुझे पता है। बेटा एक तो जैसलमेर फोर्ट है यहाँ पर, जैसलमेर का किला। एंड यहाँ पर एक और ऐसा टेम्पल है, एक और ऐसी मॉन्यूमेंट है जिसे देखने के लिए बहुत सारे NRI होते हैं, बहुत सारे विदेशी लोग होते हैं, वो उसे देखने के लिए आते हैं। और पता है आपको क्या है वो? हवा महल, विंडो पैलेस। मैम एक्सक्यूज मी। यस संचित। मैम वहाँ पे लग्जरी ट्रेन भी चलता है। बेटा लग्जरी ट्रेन नहीं चलती, मैं अभी आपको बताती हूँ इस टॉपिक में क्या दिया है। तो यहाँ पर विंडो पैलेस, जैसलमेर का किला, ये दोनों चीजें तो है ही। इसके अलावा एक और चीज है, द पैलेस ऑन व्हील्स। यहाँ पर एक ऐसा महल है जो व्हील्स पे चलता है, दैट मीन्स कि वो पहियों पर चलता है। तो बेटा वो पहियों पर चलता नहीं है, लेकिन
वहां पर नीचे जैसे बाकी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए नीचे ब्रिक्स जोड़े जाते हैं, वो महल पहिए के ऊपर बनाया गया है, पहियों के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये एक अजीब सा जो टेम्पल है, जो अजीब सा मॉन्यूमेंट है, बहुत ही यूनिक सा, ये कहाँ पर है? डेजर्ट में, राजस्थान में। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आप लोग राजस्थान घूमने तो नहीं जा सकते, आप सभी लोग अपने फोन पे ये चेक कर सकते हैं वहां के बिल्डिंग्स के बारे में कि विंडो पैलेस कैसा लगता है देखने में, पैलेस ऑन व्हील कैसा लगता है देखने में। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख सकते हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे ये कि कैसे दिखते हैं। फिलहाल मैं भी अभी देखने नहीं गई हूँ कभी भी विंडो पैलेस के बारे में, मैंने भी पिक्चर में ही देखा है, लेकिन मैंने उसकी रियल पिक्चर देखी है। कैसे, आपको पता है? जो मेरे कॉलेज से जो टूर गया था, वो लोग भी गए थे घूमने, तो वो लोग वहां के पूरी पिक्चर, यानी कि फ्रंट बैक आगे पीछे सभी से उसके पिक्चर लेके आए थे कैमरे में, और मैंने वो पिक्चर्स देखी थी। तो आप सभी को भी क्या करना है ना बेटा, इनकी पिक्चर्स देखनी है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। तो Yes, ma'am. तो आज का जो आपका ये होमवर्क है, एक तो आपको ये करना है, तो इसको सबसे पहले आप जब कर पाएंगे जब हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वो आर बंजारास राइट ए शॉर्ट नोट। बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं ना? Yes, ma'am. लेकिन अभी सभी बच्चों Yes, ने ma'am. सबमिट किया है, एंड जिसने भी नहीं सबमिट किया है ना, कल मुझे उन सभी के नाम नोट करने हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के पहले ही उन बच्चों को रिमूव कर देना है। ओके, Yes, ma'am. एंड उसके Yes, बाद मैं नेक्स्ट क्लास में ही पिक्चर भी शेयर करूंगी, ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी। तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया ना, वो देख भी नहीं पाएंगे। Yes, ma'am. उन्हें क्लास स्टार्ट होने के पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा। Yes, तो ma'am. इसलिए आप सभी को होमवर्क सबमिट करना है जल्दी से। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। तो अभी बेटा ये आप लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट Yes, क्वेश्चन, ma'am. who are Banjaras? Write a short note on them. Yes, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? शो मी योर हैंड। Ma'am, नहीं कर. Yes, Shivangi Tripathi. Now you tell, beta. Yes, Shivangi. शिवांगी, आई कांट गेट योर वॉइस प्रॉपर्ली। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही बेटा। यस, साक्षी, नाउ यू टेल। Some people living in the desert do not settle at one place but move from the place another with their families and fresh in search of water. These nomadic people are known as Banjara. चलिए, नाउ आस्था, यू टेल बेटा। Some people living in desert do not settle at one place but move from one place to another place with their families and profession in search of water. These nomadic people are known as Banjaras. वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? Why is the camel popularly known as the ship of the desert? Yes, Deepak, you tell beta. Important
is also called the sheep of the desert. Yes, Sanjana, now you tell. Camels can survive from days without water and food. Camels can also walk in the desert, sand with dim their white padded feet. Okay, yes, Rajpal, now you tell. Camel be survive for days without water and food. Camel be desert be easily during a panther feed is called sheep of the desert. Well tried. Yes, Nana Bari, now you tell beta. Ma'am, camels important list from the people Rajasthan. Camel can survive from the desert. Anushka, now you tell. Camels can survive for days without water and food, about 3 months. Camel can be used for carrying load, pulling cart, fluffing field, and for traveling. So the camel is known as the sheep of the desert. वेरी गुड. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन. स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस टू मेक देम ट्रू. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको स्ट्राइक करना है, दैट मीन्स कि हटाना है उस गलत ऑप्शन को. जो इनमें से गलत ऑप्शन होगा उसे हटा देना है, और जब आप उसे हटा देंगे तो आपका ये पूरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. To overcome the problem of water scarcity, the government of Rajasthan built the Mahatma Gandhi या फिर इंदिरा गांधी कैनल. Yes, गौरव, you tell बेटा. इंदिरा गांधी. बेटा आपसे ये पूछा है कौन से वर्ड को हटाना है. मैं can tell. बेटा आई कैन टेल आई टेल होता है. आई कैन टेल नहीं पूछना है. आई कैन टेल का मतलब क्या, मैं आई कैन टेल मैं बता सकता हूँ. तो आप ये ऐसा पूछ रहे हैं मतलब कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है. तो आप बता सकते हैं या नहीं, आप ही जानते हैं मैटर. यस आदित्य, बेटा आप बताएंगे कौन सा वर्ड गलत है यहाँ पर. महात्मा गांधी. तो यहाँ पर महात्मा गांधी को आपको क्या करना है, महात्मा गांधी को कट करना. ओके, हटाना है मैम. तो आपका ये टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बिल्ड द इंदिरा गांधी कैनल. करेक्ट हो गया. अब ये अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट. अब आएंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए, जूट, व्हीट एंड मिलेट आर द मेजर क्रॉप ऑफ द थार डेजर्ट. तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन को आंसर. अभी तक कौन सा ऐसा बच्चा है जिससे कुछ भी नहीं पूछा गया. यस अतुल, आप बताएंगे. यस अतुल, नाउ यू टेल. अतुल ऑन माइक, माइक ऑन करिए अपना. यस अतुल. मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए. बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोलने की जरूरत ही नहीं है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड गलत है, किस वर्ड को कट करना है और किसे सेलेक्ट करना है. यस अतुल. अंशित, नाउ यू टेल. मैम बताएं. यस अंशित. मैम बताएं.
अंशित आपको भी नहीं पता? ये शिखर नाउ यू टेल बेटा। मैम झूठ क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा, मैं बताती हूँ। मैम झूठ झूठ, यस झूठ इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जो आपका झूठ है इसे कट कर देंगे। बेटा आवाज किसकी आ रही है ये? आप सभी की आवाज बंद होनी चाहिए। चलिए तो अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करना है सैंडी clay soil and the lack of water make it difficult to grow crops in hard deserts. इसमें क्या रिमूव करना है? यस आस्था, नाउ यू टेल। मैम सैंडी। अनुष्का नाउ यू टेल। मैम क्ले। कैंडल। यस यशवर्धन नाउ यू टेल। क्ले ही हटाना है। क्ले हटाना है। यस दीपक नाउ यू टेल। दीपक मेडल। यस मैम। यस दीपक आप बताइए बेटा, क्या इसमें से क्या रिमूव करना है अभी? चलिए आदर्श आप बताइए बेटा। क्ले। तो बेटा यहाँ पर से क्ले को ही हटाना है। आस्था आप कंफ्यूज हो गए। क्ले को हटाना है। आस्था वहाँ पर सैंड स्टॉर्म आता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर मिट्टी सैंडी है, धूल वाली है ना? तो यहाँ यहाँ पर हमें क्ले को रिमूव करना है। सैंडी सॉइल तो है ही वहां पर, यानी कि सैंडी सॉइल एंड द लैक ऑफ वाटर मेक इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन द थार डेजर्ट। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्ले को कट कर देंगे। ओके यस मैम। नेक्स्ट देखिए, a region in the desert where water comes out in the form of a spring is known as an oasis या फिर sand dune। यस अंशित आप बताएंगे इसका आंसर। मैम यहाँ पर किसे कट करना है? मैम सैंडल। सैंडन को। यशवर्धन बेटा अंशित ने सही आंसर बताया है। यस मैम। यस शिवान्या नाउ यू टेल, क्या इन दोनों का आंसर करेक्ट है? यहाँ पर किसे रिमूव करना है शिवान्या? शिवान्या बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। नैना बारी नाउ यू टेल बेटा। मैम सही है। क्या रिमूव? सैंडल्स। तो बेटा यहाँ से सैंडन को ही रिमूव करेंगे हम लोग। एंड ओएसिस जो है वो तो करेक्ट आंसर है ही, सैंडन, यानी कि a region in the desert where water comes out in the form of spring is known as oasis। ओके बेटा तो कर लेंगे सभी। यस मैम। आज का होमवर्क क्या है बताइएगा। तो आप यस मैम। जिन्होंने ये क्वेश्चन के आंसर नहीं किए उन्हें इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये वाला वर्क करना है अपनी बुक में। यस मैम। एंड उसके बाद मैम जो राइट कमेंट दोबारा भेज देंगे। नो, जिन्होंने सेंड कर दिया उन्हें नहीं करना है। एंड इसके बाद मैं अभी आपको लाइब्रेरी भी सेंड कर रही हूँ इस चैप्टर की, वो भी आपको करना है। यस मैम। यस मैम। एंड कल संडे है, कल का आप लोग का क्या टास्क है, आप डेजर्ट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में सर्च करेंगे और पता लगाएंगे कैसा है, ठीक है? ताकि जब मैं आपको ट्यूसडे को जब मैं आपको फोटो शेयर करूँ तो आप देखते ही बता दें कि कौन से प्लेस की फोटो है। ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा किसी को कोई डाउट है?
No, ma'am. No, ma'am. सभी को समझ आ गया? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक बी डिस्कस करेंगे और आप सभी को क्या करना है, ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है, तभी आप लोग बुक बी सॉल्व कर पाएंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए फिर No, ma'am. ओके, तो बेटा आज के लिए फिर इतना ही। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बुक बी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज करके आना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye. Goodbye.